टाइम को तो हो गया, पौने 11 तो हो रहा है। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم يومنا هذا لقيام يوم الدين. أما بعد وقد قال في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. صلوات بر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بے شک زندگی کے ختم ہونے کا نام ہی ہے موت، اور موت ہر انسان کو آنی ہے. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس کو کیسی موت آنی ہے اس کو اسی اعتبار سے اعمال انجام دینے ہوں گے. جس کو جیسی موت چاہیے وہ جیسی اس کو اسی طریقے سے اعمال انجام دینے ہوں گے. اس لیے کہ روایت میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوئے گا انسان ویسے ہی کاٹے گا. آج ہم ایسی بات ہے، آج کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جسے شب آٹھ کہا جاتا ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر جگہ زیادہ تر جو ہے یہاں پہ مہندی بھی نکلی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ مصائب جناب قاسم کہا جاتا ہے. تو ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی تفسیر کسی نے نہیں بتائی کہ موت کا مزہ ہوتا کیسا. ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ایک مزہ ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا ایک مزہ ہے، یا کوئی چیز اور ہے اس کا ایک مزہ ہے. ہر چیز کا ایک مزہ ہے. لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہیں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ موت کا مزہ کیسا ہے. اگر جناب قاسم سے امام حسین نے یہ نہ پوچھا ہوتا اے میرے لال قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، اگر امام حسین نے یہ جملہ نہ پوچھا ہوتا تو موت کا اندازہ، موت کا مزہ پتہ نہ چلتا انسان کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب قاسم 13 برس میں آیت اللہ بھی تفسیر کر رہے ہیں قرآن مجید کی کل نفس ذائقۃ الموت. مولا ادھر امام حسین نے کیا کہا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. ظاہر سی بات ہے اب جناب قاسم نے یہ تو کہہ دیا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اب اس کا اندازہ کیسے ہو؟ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی چیز میٹھی ہے انسان کھاتا ہے تو جو ہے مسکراہٹ آتی ہے، اگر کوئی چیز کڑوی ہوتی ہے تو انسان کا دل عجیب ہو جاتا ہے، من عجیب ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جناب قاسم نے اتنا تو کہہ دیا الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. لیکن اس کی بھی تفسیر ایک 6 ماہ کا بچہ کر رہا ہے. اس کی بھی تفسیر جناب علی اصغر کر رہے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام میدان کارزار میں لے کے آئے ہیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے جب تیر جناب علی اصغر کے گلو پہ لگا ہے
तो अली असगर ने तीर खा के रोए नहीं है बल्कि मुस्कुराए हैं, बल्कि मुस्कुराए हैं और ये बतला रहे थे, ऐ जमाने वालों देखो 6 माह के बच्चे को पता नहीं होता है तीर खा के रोना है या मुस्कुराना है, लेकिन मैं अपने भाई जनाब कासिम के जुमले की तफसीर कर रहा हूँ। तीर खा के मुस्कुरा के बता रहा हूँ, मौत मेरे नजदीक विषय से ज्यादा शीरी। सलवात पढ़े मोहम्मद मौत मेरे नजदीक भी शहद से ज्यादा शीरी है। तो आप देखें इसी जनाब अली असगर को जब मैदान का अरजार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेके आए तो गिरिया दोनों तरफ था। रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, मम्बका वबका दबाका वजबत लहुल जन्ना, जो मेरे हुसैन पर रोए रुलाए रोने जैसी सूरत बनाए उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। हम तो जन्नत में बैठे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो मेरे हुसैन पर रोए रुलाए रोने जैसी सूरत बनाए उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। आप बताएं जिस वक्त जनाबे अली असगर के लिए पानी तलब किया उस वक्त तो फौज अश्किया मुड़कर रो रही थी, क्या उसके ऊपर भी जन्नत वाजिब है? मेरा सवाल है क्योंकि माँ इधर क्या कह रहे हैं रसूल खुदा, अम्बका वबका तबाका वजबत लहुल जन्ना, जो मेरे हुसैन पर रोए रुलाए रोने जैसी सूरत बनाए उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। तो उधर फौज अश्किया भी मुड़ मुड़ कर रो रही थी, मुड़ मुड़ कर रो रही थी, लेकिन दोनों में फर्क है। एक अहले बैत रो रहे थे, एक फौज अश्किया रो रही थी। यहाँ जो गिरिया हो रहा था वो मार्फत के साथ था, वहाँ जो गिरिया था बिदून मार्फत था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यानी अगर मार्फत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज मजलिसें कर रहे हैं हम बगैर मार्फत नहीं, इसलिए कि हमें हुसैन की मार्फत, हम हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें 1400 साल पहले से बताया जा चुका है, क्योंकि जब मारिफत के साथ इंसान गिरिया करता है तो उसका सवाब और होता है। जो बिदून मारिफत गिरिया करता है, बगैर पहचाने हुए गिरिया करता है, बगैर जाने हुए गिरिया करता है, उसके मंजिलत और होती है। जाहिर सी बात है, आज कल इमाम हुसैन को सब देख रहे थे लेकिन फिर भी मारिफत न थी। आप देखें कि इसी मैदान कारज़ार में जो है, मैंने कहा मारिफत के साथ होना चाहिए। आप देखें कि शब आशूर है, जब इमाम मज़लूम करबला, और ये पूरे करबला की जो तारीख़ है, जो जंग है, इसको आप उठा के देख लें, इसकी सारी की सारी चीज़ें विलायत के ऊपर है, विलायत अली के ऊपर है। अगर विलायत अली नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कि नमाजें उधर भी थी, नमाजें इधर भी थी, तस्बीह व तहलील थी, लेकिन उधर जो है मारिफत नहीं थी, इधर मारिफत के साथ अंजाम दिए जा रहे थे। इधर विलायत अली थी, अगर विलायत अली न होती तो कुछ न होता। इसीलिए जब मौला इमाम हुसैन ने इसी मैदान में खड़े होके पूछा था कि तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो, तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो, तो एक आवाज़ आई थी, बुग़्ज़न ले अबीक, हम आपको आपके बाबा की दुश्मनी में कत्ल करना चाहते हैं। हमें आपसे दुश्मनी नहीं है, हमें आपको आपके बाबा से दुश्मनी है। यानी विलायत अली एक ऐसी चीज़ है कि जो दुश्मनाने अली की हलक से कभी उतर ही नहीं सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस आखिरी बात कह के तमाम कर देता हूँ। यही वजह है कि जब इंसान का सवाल जवाब हो जाएगा रोज़े महशर, जब पुले सिरात से गुजरेगा, और पुले सिरात से जब गुजरेगा वहाँ पे एक सवाल और किया जाएगा, विलायत अली है कि नहीं है। अगर विलायत अली नहीं है तो इंसान जहन्नम में चला जाएगा, विलायत अली है तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नारे हैदरी।
अगर विलायत अली है तो जन्नत में दाखिल हो। पूरी की पूरी जंग विलायत अली के ऊपर है। तो अजीज़ान गिरामी, आप देखें कि आज की शाम दरियाए फुरात पर पहरा बढ़ा दिया गया था, यानी 7,000 का मजमा दरियाए फुरात पे और लगा दिया गया कि कहीं से पानी जो है फौजे जो पानी ख़याम तक न पहुंच पाए। इतनी ज़्यादा आप देखें कि आज के दिन मेहंदी निकलती है, लोग जनाब कासिम के मसाइब पढ़ते हैं, लेकिन एक जुमला कहता हूँ हम पे गिरिया अदा हो जाएगा। जब ये जनाब इमाम हसन मुश्तबा की शहादत वाक़ हुई है, उस वक्त जनाब कासिम की एज उम्र 3 साल की थी, यानी सन 50 हिजरी में जनाब कासिम 3 साल के थे। तो आप देखें कि उसी 3 साल की उम्र में एक मर्तबा अपने सहने खाना में खड़े हुए थे, दरख्त के ऊपर 2 कबूतर बैठे हुए थे। एक मर्तबा जनाब कासिम ने अपने हाथ को यूं किया और दोनों कबूतर आकर जो है जनाब कासिम के हाथ पे बैठ गए। अब ये कबूतर का कारवां बढ़ता रहा। जनाब कासिम रोज़ाना सुबह और शाम दाना और पानी दिया करते थे, और यहाँ तक कि इतने ज़्यादा कबूतर हो गए जिसकी कोई इंतहा नहीं रही। आप देखें कि उसके बाद जो है जब जो सन 60 हिजरी 28 रजब को ये काफ़िला चल रहा था, उस वक्त जनाब हनफिया को बुला के कहते हैं कि चचा मैं जा रहा हूँ, आप रोज़ाना इन परिंदों को कबूतरों को दाना और पानी दे देना। लेकिन जब दूसरा दिन सुबह का वक्त आया है, जनाब मोहम्मद हनफिया आप वो दाना लेकर आए तो कोई कबूतर न थे, कोई कबूतर न थे। ये सारे कबूतर गए कहाँ? ये सारे के सारे कारवान के साथ साथ चल रहे थे, साया फिगन बने हुए थे। यहाँ अज़ादारों ये काफिला करबला आ गया। जब करबला आ गया खैमे नस्ब हो गए। खैमे जब नस्ब हो गए तो ये जो है तनाबों के ऊपर जाके खैमे के ऊपर बैठे रहते थे। आज़ादारों जब पानी बंद हो गया, जब पानी बंद हो गया, इन कबूतरों ने किया क्या है आज़ादारों, इन्होंने आपस में तय किया अहले बैत के बच्चे प्यासे हैं, हाय अलतश की सदाएं बुलंद है, दरियाए फुरात पे जाएं और जाने के बाद अपनी मिनकारों में पानी लेके आए ताकि जो डाल दे कोई प्यासा न रहे। अरे परिंदों को इतना एहसास है, वो कैसे मुसलमान थे। जज़ाकुमुल्लाह आज़ादारो, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हाँ आज़ादारो, उसके बाद इमाम हुसैन ने मना कर दिया, इन परिंदों को भी मना कर दिया कि आज से आप लोग ये काम नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए इमाम ने एक जुमला कहा था, हम वक्त इम्तिहान में हैं, हमारे ऊपर इम्तिहान की ये मंजिलें हैं जो हमें अबूर करना है। आज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला, ये परिंदे इसी तरीके से करबला में साया फिगर रहते थे। मुझे पूरे इसके मसाइब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज जब 11 मुहर्रम को ये काफिला गया है ना, तो परिंदे हुसैन की कब्र पे फिर साया फिगन कर लिए। क्यों? इसलिए कि हुसैन की लाश जलती हुई रेत पर इसी तरह पड़ी थी। आज़ादारो, आज 7 मुहर्रम है। हाँ, ख़याम फुरात के ऊपर, दरियाए फुरात के ऊपर पहरा बढ़ा दिया गया। लेकिन आज़ादारो, ज़रा तसव्वुर कीजिए आज की वो शब कितनी क़यामत खेज़ शब है, जिस वक्त जो है आज की शब जनाब कासिम के मसाइब पढ़े जाते हैं ना। आज़ादारो, हर एक शहीद होने के लिए तैयार होता रहा। जनाब कासिम अपने चचा की खिदमत में आए, आके कहते हैं चचा मुझे भी रन की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं बेटा तुम तो मेरे भैया हसन की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे रन की इजाज़त दे दूँ। आज़ादारो, जनाब कासिम रोते हुए माँ के खैमे में आए। आज़ादारो, एक मरतबा जनाब फरवा पूछती बेटा कासिम क्या हुआ? कहा चचा ने रन की इजाज़त नहीं। जज़ाकुमुल्लाह आज़ादारो,
रो लीजिए, पुरसा पेश कर लीजिए, इसलिए कि आशूर का दिन दिन ब दिन करीब आता जा रहा है। हुसैन मजलूम की मजलूमियत करीब आती जा रही है। आज़ादारो, आज़ादारो, जब जनाब कासिम पहुँचे हैं तो चचा ने रन की इजाज़त नहीं दी। एक मरतबा फरवा रोने लगी। इसी रोने की सिसकियों की आवाज़ इमाम हुसैन के कानों से टकराई। उस वक्त हुसैन ख़याम हुसैनी का जायज़ा कर रहे थे, हर एक खैमे में जा जा के देख रहे थे। लेकिन अज़ादारो, जब आवाज़ सुनाई दी ना, एक मरतबा जनाब फरवा के खैमे में आए, आके कहते हैं, भाभी फरवा, रोने का सबब क्या है? एक मरतबा जनाब उम्मे फरवा कहती है, ए हुसैन, क्या मेरा ये कासिम फिदिये के लायक नहीं है? फिदिये के लायक नहीं है। अज़ादारो, इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा है, ए भाभी, अरे शोहदा की फहरिस्त में अरे कासिम के भाई अली असगर का भी नाम है। इतना कह के हुसैन आगे बढ़ गए। आज़ादारो, इसी हसना में एक मरतबा जनाब उम्मे फरवा को याद आया कि जब हसन का वक्त आखिर था ना, तो एक मरतबा कहा था, जब बहुत बड़ी मुसीबत आए तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना, जो बाजू जनाब कासिम पे बाधी थी। एक मरतबा जनाब कासिम को करीब बुलाया, मेरे लाल कासिम, हसन कासिम, करीब आओ। एक मरतबा जब करीब आए ना, एक मरतबा करीब आने के बाद कहा, बाजू के तावीज़ को खोलो। अब जैसे ही बाजू के तावीज़ को खोला तो उसमें क्या लिखा था, ऐ मेरे लाल कासिम, जब ये तावीज़ तुम खोलोगे ना, उस वक्त मेरा भैया हुसैन नरग़े आदा में गिर चुका होगा। ऐ मेरे लाल कासिम, तुम अपनी जान मेरी तरफ से निछावर कर देना। ऐ मेरे लाल कासिम, अरे शहादत से घबराना नहीं, वक्त शहादत, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारो, खुदा कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। रो लीजिए अज़ादारो, बस 2-4 फ़िक्रे हैं, ख़त्म दुआ है। हाँ अज़ादारो, जनाब कासिम आए, इजाज़त मिली, मैदान कारज़ार में आए। जंग कर रहे हैं कासिम, कभी मैमना को मैसरा पर, कभी मैसरा को करब लश्कर पर उलट दिया। लेकिन अज़ादारो, 13 बरस का कासिम कहाँ तक जंग करता? अरे 13 बरस का कासिम कहाँ तक जंग करता? एक मरतबा जंग करते करते आवाज़ देते, या अम्माओ अदरिकनी, ए चाचा मदद को आइए। बस अज़ादारो, इधर से गिरते हुए जनाब कासिम ने आवाज़ दी, उधर से हुसैन चले। अरे गिरते पड़ते हुसैन आते हैं, कहते मेरे लाल कासिम कहाँ हो, आवाज़ दो। कोई आवाज़ नहीं आई। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, कहते मेरे लाल कासिम आवाज़ दो। अरे कोई आवाज़ नहीं आई। इधर से गिरते हुए कासिम ने आवाज़ दी थी, चाचा मदद को आइए। अज़ादारो, एक मरतबा उधर से हुसैन चले, इधर से कासिम ने आवाज़ दी। अरे 13 बरस के कासिम पर इतने घोड़े गुजर गए। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारो, बस क़यामत खेज़ जुमले हैं, सब्र कर लीजिए अज़ादारो। अज़ादारो, इतने घोड़े गुजर गए, अरे सबका लाशा मरने के बाद पामाल हुआ। लेकिन अभी 13 बरस के कासिम में जान बाकी थी। अरे इतने घोड़े दौड़ाए गए, कासिम का लाशा पामाल हो गया। हुसैन ने एक बुलंदी से आवाज़ दी, ऐ मेरे लाल कासिम कहाँ हो? अरे उन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों से आवाज़ आई, ए चाचा मैं इधर हूँ। हुसैन आए, अबाव का दावा फैलाए, एक मरतबा टुकड़ों को जमा किया, जमा करके खैमे में लाए। ला के कहते फरवा, लो तुम्हारे बच्चे की बारात, लो तुम्हारे कासिम।